Hi dear and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to EI Spoken English Spelling. Bakhair Ragle. Today we have very important lesson. We are going to learn about using should do, will do, need to do, ought to do, must do, would do, ought to do, have to do, and may do. Not only this, but we're also going to have some practice using probably do, possibly do, might do, surely do, likely do, eagerly do later, do can, and can do. So let's get started. The first thing is that I'm going to tell you a confidential thing that is giving you a lot of confidence, such as कि आपको एक फ़िक्रा बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको मस्ट मे माइट could ought to should to must to you'll have nothing to make any kind of doubt in your mind. Okay, so be clear, be frank. Now I'm going to tell you something. अली ने आपसे बात करनी है. किसने? क्या बात करनी है? Ali has to talk to you. Ali needs to talk to you. Ali wants to talk to you. Ali is willing to talk to you. Ali likes to talk to you. Ali is waiting for you to talk. Ali is to talk to you. Well guys, now decide कर लीजिए. Decide आपने करना है कि फिक्रा कौन सा ठीक है. Which one is the correct one? You have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well guys, जिन्होंने कहा है कि Ali has to talk to you, वो भी ठीक है. और जिन्होंने ये कहा Ali needs to talk to you, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो भी फिक्रा ठीक है. और जो Ali wants to talk to you कहने वाले हैं वो भी मुबारक के मुस्तहिक हैं, लेकिन Ali is willing to talk to you बिल्कुल दुरुस्त है. Ali likes to talk to you बिल्कुल perfect. Ali is waiting for you to talk. That's modern way, modern English, functional English. Ali is to talk to you. That's one of the perfect sentence. So मेरे नज़दीक सब फिक्रे बिल्कुल ठीक हैं. Ali ने आपसे बात करनी है. Ali has to talk to you. Ali needs to talk to you. Ali wants to talk to you. Ali is willing to talk to you. Ali needs to talk to you. Ali likes to talk to you. Ali is waiting for you to talk. Ali is to talk to you. All sentences are perfect and correct according to grammar, according to using of words with the correct English functions. तुम्हें कहाँ जाना है? Where do you need to go? Where do you have to go? Where do you want to go? Where are you willing to go? Where do you like to go? Where do you intend to go? Where are you to go? All sentences are perfect. All sentences are correct from the grammar and also functions. और यहाँ एक वाज़ेह बात वो ये कि ये सबक अगर आपको आ जाए तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिए. उसका ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए हमसे लिंक के रिक्वेस्ट कर दें. हम आपको कमेंट्स में लिंक भेज देंगे जो कि ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू होता है. उर्दू में सवालात होते हैं, उसका जवाब इंग्लिश में मल्टीप्लाई के देना होता है. 10 क्वेश्चन होते हैं, 70% 80% पासिंग मार्क्स होते हैं. और जब आपके मार्क्स आएँ हमें लाजमी कमेंट्स में बताइएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वेलकम बैक. अब हम इनका एक एक इस्तेमाल करेंगे और तजुबाती अंदाज से हर फ़िक्रे को डिफरेंट अंदाज से गो थ्रू करेंगे और साबित करेंगे कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं और कहाँ हमने तस्सीह कर ली है. द सेंटेंसेस वो 7 बजे सोएगा, वो कब आएगा, वो तेरे से बात ही नहीं करेगी. वो 7 बजे सोएगा, ही विल स्लीप एट 7. वो कब आएंगे, when will they come? वो तेरे से बात ही नहीं करेगी. She'll not talk to you. मैं जल्दी मिलूँगा. I shall see you soon. I'll see you soon. हम नहीं आएंगे. Will not come. Will not come. क्या मैं भी आऊँगा? Shall I be there too? Shall I be there too? Shall I come too? Shall I come there too? करेंगे should and must. शुड का इस्तेमाल कहाँ करना है, मस्ट का इस्तेमाल कहाँ करना है. 2 बातें, 2 लाइनें, 2 इतराफ़. एक तरफ तो हम अगर आपको इखलाकी फ़राइज़ बताएं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ को मॉरल वैल्यूज़ यानी कि आपके इखलाकी इक़दार जो हैं उनको बढ़ाएं, तो आपको नसीहत दी जाती है
कि आपको जल्दी उठना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बड़ों के महफिल में खामोश रहना चाहिए। इस पे आप अमल करें ना करें, इट्स अप टू यू, आपका नुकसान नहीं, ताहम आपकी मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती हैं, यानी इखलाकी फ़राइज़। सेकेंडली, मस्ट का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जिस तरफ मैं आपको लाज़िम मलज़ूम असूल बताता फिर हूँ कि पास होने के लिए मेहनत करनी होगी। क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। मुझे मिलने के लिए सुबह सवेरे उठना होगा, आना होगा। कामयाबी के लिए वालिदैन की खिदमत करना होगी। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, वो तो फिर शुड में आ गया, चाहिए इखलाकी फ़राइज़ में कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वालिदैन की खिदमत करें। एक चीज़ जिससे आपको कुछ करके कुछ मिले इज़ कॉल्ड मस्ट। एक चीज़ जो आप करें और आपके इखलाकी फ़राइज़ के नंबर बढ़ाए वो होता है शुड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड गेट अप अर्लियर। गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक अ लॉट, यू शुड नॉट स्पीक अ लॉट। पास होने के लिए मेहनत करना होगी, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। मुझे मिलने के लिए सुबह सवेरे आना होगा, यू मस्ट कम टू सी मी अर्ली इन द मॉर्निंग, यू मस्ट कम टू सी मी अर्ली इन द मॉर्निंग। कामयाबी के लिए वालिदैन की खिदमत करना होगी, यू मस्ट वर्क हार्डर फॉर सक्सेस, यू मस्ट work harder for the success, you must work harder for success। या फिर कामयाबी के लिए वालिदैन की खिदमत करनी होगी, you must serve your parents। Now let's talk about using should and need। should and need, मुझे अब निकलना होगा, मुझे अब निकलना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए। I should leave now, हमें सबकी बात सुन लेनी चाहिए। We should confirm first, इन्हें आज नहीं खेलना चाहिए था। They should not play today, उसको अब घर जाना है। He needs to be home। वैसे तो नीड का मतलब ज़रूरत है, तो ज़रूरत क्या होती है? किसी चीज़ की चाहत, किसी चीज़ का उसको ज़रूरत पड़ना कि वो घर जाने की ज़रूरत है। So he needs to be home, हमें आपसे बात करनी है या फिर हमें आपसे बात करने की ज़रूरत है। We need to talk to you। मुझे ये सबक सीखने की ज़रूरत है या मुझे ये सबक सीखना है। I need to learn this lesson, I need to learn this lesson। एक वर्ड है आउ, एक वर्ड है आउट। दोनों वर्ड आपके सामने हैं, आउ एंड आउट। सो आउट टू एंड आउट टू। आउ का मतलब है ज़ेरे बार होना, किसी का मकरूज़ होना। जैसे मैं स्टूडेंट्स का आउ टू हूँ, ज़ेरे बार हूँ। जैसे आपकी खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, यानी ये भी एक कर्ज़ की तरह है, यानी अंडर द डेट। सो वी owe you, I owe you, alright। यानी कोई एहसान कर जाए हम पे, हम उस एहसान का बदला चुकाएं, is called owe to। जैसे I owe you for this, I shall owe you for this, मैं आपको इस एहसान का बदला दूंगा। यानी हम बाज़ कहते हैं ना कि मेरी तरफ से यह आपका उधार रहा, right? I shall owe you for this। But let's talk about the word ought to। The ought to word is जब हमें should कहना पड़े और should कहना ना आए, ought to कह लें। दोनों similar words हैं। We should help the needy people, we ought to help the needy people।
Both words can be used properly. So let's learn how to use owe and out in our sentences. So the first sentence is मैं आपके इस एहसान का बदला चुकाऊंगा. I'll owe you for this या फिर I owe you for this. आपने अभी भी मेरे पैसे देने हैं. You still owe to me. मैंने आपके पैसे देने I owe to you. उसको उसकी दी हुई रकम वापस कर दो या आपको चाहिए कि आप उसकी रकम वापस कर दें. You should return his money that you owe to him. जो आपने उसकी देनी है यानी जिसके आप मकरूज हैं यानी you owe to him. आपको अपने वालिद को कार दे देनी चाहिए थी यानी आपके वालिद को चाहिए था कि आपको कार यूज़ करने के लिए देते. So your father ought to lend you car. Your father ought to lend you car. आपको खामोश रहना चाहिए. You ought to be quiet. यहाँ मैं should का भी इस्तेमाल कर सकता था यानी you should be quiet. आपको खामोश रहना चाहिए. You should be quiet. मगर मैं कह रहा हूँ कि आपको खामोश रहना चाहिए. You ought to be quiet. Both words are correct. Using should and quiet similar. जहाँ आप should इस्तेमाल करें वहीं पे out का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें. We ought to thank him. We ought to say him thanks. Now let's use should and ought to. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि using ought to, using should is the same. We can replace the word ought to into should and should into ought to. जहाँ भी should का इस्तेमाल करें वहीं ought to का इस्तेमाल करें. For example, बड़ों की महफिल में खामोश रहना चाहिए. आपके जहन में इस वक्त should आ रहा होगा. कोई बात नहीं अगर आप इसके ought to का भी इस्तेमाल कर रहे तो. For example, we should be quiet in the company of elders. आप ये भी कह सकते हैं we ought to be quiet. छोटों पर शफकत करनी चाहिए. We should love our youngsters. आप भी कहिए we should love our youngsters. अब मैं कहूँगा we should love our youngsters. आपको चाहिए आप कहें we ought to love our youngsters. उस्ताद को हमेशा इज्जत देनी चाहिए. We should respect our teachers. आप कहिए we ought to respect our teachers. आपको चाहिए था कि उसको किताब दे देते. You should या फिर you ought to lend him book. आप रात यहाँ क़याम कर लेते. You ought to stay here. You ought to stay here night with us. हमें वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए. We ought to care our parents. We ought to care our parents. Using have to and has to. याद रखिएगा कि have to का इस्तेमाल और has to का इस्तेमाल मलकियत के लिए नहीं हो रहा बल्कि ये किसी काम की ज़रूरत के लिए हो रहा है. जैसे मुझे अब जाना है. हमने आपसे बात करनी है. आपको खामोश रहना है. उसने जाना है. अली ने आपसे बात करनी है. उसको ये सबक लाजमी याद करना है. किसी काम की ज़रूरत ज़ाहिर हो रही है. हैव टू का इस्तेमाल हम आई वी यू दे के साथ और हैज़ टू का इस्तेमाल ही शी इट और नेम के साथ करेंगे. मुझे अब जाना है. आई हैव टू गो नाउ. हमने आपसे बात करनी है. वी हैव टू टॉक टू यू. आपको खामोश रहना है. यू हैव टू बी क्वाइट. उसने जाना है. ही हैज़ टू गो. ही हैज़ टू गो. अली ने आपसे बात करनी है. अली हैज़ टू टॉक टू यू. उसको ये सबक लाजमी याद करना है. He has to learn this lesson. Now let's have consideration and the difference between using need to, has to and have to. मुझे अब जाना है. I need to go now. I need to go now. या फिर I have to go now. हमने आपसे बात करनी है. We have to talk to you. We need to talk to you. आपको खामोश रहना है. You have to be quiet. You must keep quiet. या फिर You must be quiet. उसने जाना है. He needs to go. He has to go. अली ने आपसे बात करनी है. Ali needs to talk to you. या फिर Ali has to talk to you.
उसको ये सबक लाजमी याद करना है। ही नीड्स टू लर्न दिस लेसन, या फिर ही हैज़ टू लर्न दिस लेसन. So there is no difference between using have to, has to, and need to, and needs to. Now let's talk about using must with have to and has to. आपको मोबाइल बंद रखना होगा. You must keep the mobile off. उसे जल्दी सोना होगा. He must sleep early. आपको खामोश रहना है. You must be quiet. उसने जाना है. He has to leave. अली ने आपसे बात करनी है. अली has to talk to you. उसको ये सबक लाजमी याद करना है. He has to learn this lesson. Using must, अली ने आपसे बात करनी है. अली का दिल है कि वो आपसे बात करे. अली चाहता है कि वो आपसे बात करे. अली को ज़रूरत है आपसे बात करने की. अली आपसे बात करने की ख्वाहिश रखता है. अली आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहा है. अली आपसे बात करने को है. मैंने जो भी आपको उर्दू में सेंटेंसेस बताए, सब के सब with the same meaning, with the same English wording we can use. So there is no difference. It's the same with relation using with the different words in English. Ali ने आपसे बात करनी है. Ali has to talk to you. Ali needs to talk to you. Ali wants to talk to you. Ali is willing to talk to you. Ali likes to talk to you. Ali is waiting for you to talk. Ali is to talk to you. So all words, all sentences having same, giving the touch of the sentence that I have written in Urdu language. Using will and would. मैं आऊँगा. I shall come. इसको आप खाओगे. You will eat this. आप उसकी बात सुनोगे. You will listen to him. ना गौर कीजिएगा कि will और would का इस्तेमाल कैसे पहचान करनी है. इतना बड़ा इशू है तो नहीं, मगर अगर है तो आप ये जान लीजिए कि इन फ़िक्रों का जो असल रॉ है वो ये है कि मैं आऊँगा कि वाकई ही मैं आऊँगा. आप इसको खाओगे तो मैं आपके फ्राइज़ में शामिल करने जा रहा हूँ कि आप इसको वाकई ही खाओगे. आप उसकी बात सुनोगे. मैं तो हुक्मी अंदाज में बता रहा हूँ. तो विल का इस्तेमाल हो रहा है, शैल का इस्तेमाल बेजा हो रहा है. मगर एक चीज़ में हम श्योर नहीं हैं. इजाज़त लेना चाहते हैं, या जिसको हम कोई काम दे रहे हैं उसका नहीं पता, उसको अपने आप का नहीं पता कि वो ये कर पाएगा या नहीं. देन वी यूज़ वुड. क्या आप आना लाजिम बनाएंगे? मैं इस अंदाज में पूछ रहा हूँ. एक तो मुझे भी नहीं पता वो आएगा या नहीं. एक शायद उसको भी ना पता हो, वो भी इजाज़त लेने का मोहताज हो किसी से. शायद अपनी वाइफ से, शायद अपनी वालिदा से, शायद अपने फादर से, शायद अपने फ्रेंड से, शायद अपने बॉस से. क्या आप आना लाजिम बनाएंगे? वुड यू कम, यानी क्या आप आओगे. एक तो ना आप आओगे मीन्स यू विल कम. एक क्या आप आओगे, वुड यू कम. क्या आप ये खाओगे, आपसे ये खाया जाएगा, वुड यू ईट दिस, यानी वी नॉट श्योर. क्या आप इसकी बात सुनेंगे, वुड यू लिसन टू हिम, यानी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उसकी ये बात सुन पाएँ. वुड यू लिसन टू हिम. वुड, तब तक तो वो शायद आ चुका होगा. यू वुड हैव कम टिल देन. मुझे नहीं इल्म कि मैं आऊँ. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई वुड कम. क्या आप आ पाओगे, वुड यू कम. पता नहीं शायद वो इसकी बात सुन लेगा. नॉट श्योर इफ़ ही वुड बियर विद यू. मैं इजाज़त लेकर बताऊँगा कि मैं आऊँगा कि नहीं. आई विल लेट यू नो इफ़ आई वुड कम और नॉट आफ्टर द परमिशन. मैंने इसमें वुड का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि सब फ़िक्रे डामाडोल से हैं. तो फिर आप क्यों हो जाते हैं डामाडोल. डामाडोल इसी तरह आप जिस चीज़ में डामाडोल हो, वुड का इस्तेमाल करें. मे की जगह माइट का इस्तेमाल करें. कैन की जगह पे कुड का इस्तेमाल करें. अपनी अपनी सेंस के साथ, अपनी अपनी मीनिंग के साथ. यूजिंग मस्ट डू एंड माइट डू. आपको हर हाल में जाना है. हमें लाजमी उठना है. लाहौर जाने के लिए ट्रेन पर सफ़र करना है. मीन ट्रेन ही जाती होगी. सो यू मस्ट लीव. आपको हर हाल में जाना है. हमें लाजमी उठना है. वी मस्ट वेक अप. लाहौर जाने के लिए ट्रेन पर सफ़र करना पड़ेगा या करना होगा. वी मस्ट कैच द ट्रेन फॉर लाहौर. वो आ सकता है. ही माइट कम. पता नहीं शायद वो आ जाए. नॉट श्योर बट माइट कम, बट ही माइट कम.
वो हरा भी सकता है, he might defeat too। ये जो might वर्ड है ये might में से निकला है। में का मतलब है सकना, चाहे इजाज़त लेके जैसे मैं आ सकता हूँ या फिर उसकी खुद किस्मती तौर पे उसका आ सकना, इस कॉल्ड might। और मैंने पहले भी जैसे कैन से कुड को और विल से वुड को, इसी तरह मे को माइट में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? बिकॉज वी आर नॉट श्योर। यूजिंग मे बी, माइट बी, पॉसिबली एंड प्रोबेबली। मुमकिन है वो आए, वेरी सिंपल। मुमकिन की इंग्लिश पॉसिबल, सो मुमकिन है पॉसिबली ही विल कम। हो सकता है वो ना आए, हो सकता है कि इंग्लिश मे बी, सो मे बी यू वुड नॉट कम। शायद वो आपसे बात करे, might be he would talk to you। गालबन वो आपसे मिले, probably he would talk to you, he would see you, he would be in touch with you। probably वो आपसे मिले। लगता है वो जल्दी सोएगा, intendedly he might go to sleep earlier, intendedly he might sleep earlier। हो सकता है कि आज ही मैच हो, it is likely to be match today। likely हो सकता है, intendedly लगता है, seemingly लगता है। वर्ड seemingly भी लगता है कि ज़मरे में आता है। possibly मुमकिन है, probably गालबन, might be शायद, maybe हो सकता है। can and could, वो ये उठा सकता है, वो जल्दी भी उठ सकता है, यानी वो जल्दी भी उठ सकता है। वो आपको हरा सकता है, वो ना आ सका, वो आ सकता था, वो आपको जल्दी ही बता पाएगा। एक तो हमने इसको पास में कन्वर्ट किया कुड का, कैन का कुड, और दूसरा हमने इसको नॉट श्योर के समरे में बताया। वो ये उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस अप, वो जल्दी भी उठ सकता है, ही कैन वेक अप अर्ली। वो आपको हरा सकता है, ही कैन डिफीट यू। वो ना आ सका, he could not come, वो आ सकता था, he could come। Because I'm talking about the past, it is simple। Using second form, we talk about second form when we talk about the past। वो आपको जल्दी ही बता पाएगा, he could tell you sooner। Using may and might also, when we convert may into past and we're talking about past, we use second form of verb, so may is the verb and then might is the second form of verb। And when we are not sure, we use second form। क्या वो भी आ सकता है? मैं ही कम, मैं इजाज़त ले रहा हूँ। मोस्टली मे को इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल किया सकता है ना। क्या वो भी आ सकता है? मैं ही कम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मे आई गेट इन, क्या ये सबक, क्या ये ख़त पढ़कर वो सुना दे? मे ही रीड दिस लेटर, मे ही रीड दिस लेटर। वो आ सकता है, ही माइट कम बिकॉज आई एम नॉट श्योर। पता नहीं, शायद वो आ जाए, मे बी ही माइट कम, ये वक़ूआ भी हो सकता है, दिस इंसिडेंट माइट occur too। यूजिंग कैन एंड मे, कैन इज़ अ पावर, मे एक इजाज़त आप ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। कैन में आप अपने आप हैं, मे में आप किसी के मोहताज हैं। वो ये उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस अप, वो जल्दी भी उठ सकता है, कैन वेक अप अर्ली। वो आपको हरा सकता है, ही कैन डिफीट यू। मैंने इसमें सलाहियतें बताई हैं, एबिलिटीज़ बताई हैं, मगर यहाँ अगर इन फ़िक्रों को पढ़ूँ तो पता चलेगा कि इजाज़त का मोहताज है। क्या वो भी आ सकता है? मे ही कम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मे आई गेट इन, क्या ये ख़त पढ़ कर सुना दे वो? मे ही रीड दिस लेटर। समझ गए? अगर नहीं समझे तो इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द फ़र्क पड़ेगा। यूजिंग कुड एंड माइट, जैसे हमने कैन और मे को कन्वर्ट किया, उनको एक्सपीरियंस मिलाया, इसी तरह सेकंड फॉर्म्स को, यानी कैन से कुड को और मे से माइट को। वो जल्दी ना उठ पाया, ही कुड नॉट वेक अप अर्ली, वो ये पैगाम ना दे सका, ही कुड नॉट कन्वे इट, वो सारी रात ना सो सका, ही कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। वो आ सकता है, ही माइट कम, यानी आ सकता है शायद, हाँ पता नहीं, शायद वो आ जाए, नॉट श्योर, माइट बी ही वुड कम, वो पक्का आ गया होगा, ही माइट हैव कम।
Using could, वो जल्दी ना उठ पाया. He could not wake up early. वो ये पैगाम ना दे सका. He could not convey it. वो सारी रात सो ना सका. वो सारी रात सो ना सकी. She could not go to sleep the whole night. She could not sleep the whole night. क्या आप आओगे? क्या आप आ पाओगे? Could you come? क्या आप जीत पाओगे? Could you win? क्या वो पकड़ा जाएगा? Could he be caught? Using would and could, क्या आप आओगे? Would you come? क्या आप जीतना चाहोगे? Would you like to win? Means के would you like तो एक different चीज़ है ना. जीतना पसंद करोगे, जीतना चाहोगे, खाना पसंद करोगे, आना पसंद करोगे. Would you like to come? Would you like to visit? इस फिक्रे को हटाएं तो आपको समझ आएगी कि would का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं. क्या आप आओगे? Would you come? क्या आप ये खाओगे? Would you eat? You need not show, okay? Second form. Now talking about could, क्या आप आओगे? Could you come? क्या आप जीत पाओगे? Could you win? क्या वो पकड़ा जाएगा? Could he be caught? So could and would we use always when we are talking about he is not sure. That's all for now. Thanks for being with EA. Do not forget to be in touch. We are always with you. That's all for now. Thanks for being with EA.